Hello, dear friends. Today we will discuss about birth cry or first functional breath just after birth and birth asphyxia. We will discuss about the basic physiologies behind these two processes, how the baby starts breathing just after birth, or what is the purpose of birth cry, and what if the baby does not cry just after birth, and what is the term asphyxia denotes. This all will be covered in today's lecture. First and foremost thing is what is first breath or birth cry. As such, the first breath does not truly occurs just after birth. The baby have started the breathing movements which are more rapid and ineffective as early as 20 weeks of gestation. इसको हम बोल सकते हैं कि बेबी starts breathing efforts or respiratory movements as early as 20 weeks, as such like a rehearsal for the breathing. But as such, when baby breathes in amniotic sac filled with the amniotic fluid, the lungs are basically fluid filled in fetal life. The first and functional breath occurs just after birth due to various stimuli for smooth transition from fetal to adult respiration. As we all know that during pregnancy, during fetal life, the respiration is done by placenta, and after birth, this transition occurs to lungs. The respiration is taken over by lungs from placenta just after birth, and there are some physiological changes to facilitate this particular change in respiration from placenta to lungs, and these changes are basically changes in fetal circulation. तो fetal circulation की जो जो changes जस्ट आफ्टर बर्थ होते हैं वो भी आपको जो एक बार देखना है. fetal circulation पे ऑलरेडी जो है एक वीडियो अपलोडेड है चैनल पे, तो उस पे आप जो है जाके देखें. तो बेसिक चेंजेस क्या होते हैं कि देयर इज क्लोजर ऑफ फोरामेन ओवेल. जो प्लेसेंटा से ब्लड आ रहा था अम्बिलिकल वेन से, वो फोरामेन ओवेल से लेफ्ट साइड जा रहा था, तो क्लोज हो जाएगा. क्यों फिर डक्टस विनोसस और डक्टस आर्टरियोसस का भी क्लोजर होगा. तो इसको हम डिस्कस करेंगे कि कैसे क्लोजर होगा. बट फिटल सर्कुलेशन का वीडियो आप सब लोग देखें तब ज़्यादा समझ आपको जो है आएगा. The alveoli previously filled with fluid now are air spaces, and thus the alveoli uh, starts function of respiration or breathing. How these alveoli are opened up or contain air, there are some principles or some facts about it. कि जो भी फ्लूइड है, मोस्ट ऑफ इट और टू थर्ड ऑफ इट इज squeezed out during normal vaginal delivery when chest is pressed inside the birth canal, and rest of the fluid is actively reabsorbed, or intra-alveolar pressure is increased, and some is forced into the interstitial tissue, and some is actively reabsorbed into interstitial tissue of the lungs, and then from there to the capillaries. तो इस तरीके से जो फ्लूइड फिल्ड एल्वेलाई थे उसमें जो है एयर एयर आ जाएगी एंड रेस्पिरेशन शुरू हो जाएगा. तो फॉर दिस वेरी पर्पज ऑफ displacing the fluid, the baby cries, and crying produces increased intrathoracic pressure or more pressure on alveoli, and this crying also facilitates removal of fluid from the alveoli to the interstitial tissue. Basically, this also have a physiological basis of ventilation. If baby have not ventilated, then
फर्स्ट फ्यू ब्रीथ हम कराते हैं, वेंटिलेट हम कराते हैं, इट रिक्वायर्स समवट मोर प्रेशर to displace this fluid and later on the pressure of ventilation reduce होता है। तो बेसिकली लंग्स कैसे नॉन फंक्शनल होते हैं फिटल लाइफ में और कैसे वो फंक्शनल हो जाते हैं जस्ट आफ्टर बर्थ, उसके बिहाइंड साइंस है। और वो साइंस क्या है कि ड्यूरिंग फिटल लाइफ द arterioles of this pulmonary arterioles which supplies alveoli or lungs, they are constricted arterioles. They are thick walled. As such, they contain deoxygenated blood from the right ventricle, but they are thick walled, and they are very sensitive to hypoxia as well as acidosis. And this very fact is very essential to know about, because it will help us during resuscitative measures. तो होता क्या है कि फिटल लाइफ में जो आर्टरियोल्स हैं कंस्ट्रिक्टेड होते हैं, जिससे कि प्रोनरी वेस्कुलेचर का रेजिस्टेंस हाई होता है। रेजिस्टेंस यहाँ हाई होता है प्रोनरी वेस्कुलेचर का, दैट्स वाई द राइट वेंट्रिकल से जो है शंट हो जाता है ब्लड थ्रू डक्टस आर्टरियोसस इनटू द systemic circulation, because here the resistance in coronary arteries is high, and there is shunting through the duct which is present between coronary trunk and descending aorta, that ductus arteriosus. तो इस डक्टस आर्टरियोसस के थ्रू मैक्सिमम ब्लड जो राइट वेंट्रिकल का शंट हो जाता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। वेरी मिनिमल ब्लड विच इज रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लंग इज सप्लाई टू द लंग्स। अदरवाइज जो एडल्ट्स में या आफ्टर बर्थ जो सर्कुलेशन होता है कि सिस्टेमिक एज वेल एज दिस पल्मोनरी जो सर्कुलेशन है उसमें इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ ब्लड जाता है, वैसा फिटल लाइफ में नहीं होता है। लंग्स में बहुत कम ब्लड जाता है, एंड बेसिक रीजन इज दिस कंस्ट्रिक्टेड आर्टरियोल्स व्हिच आर वेरी सेंसिटिव टू hypoxia and acidosis. As such, fetus always live in hypoxia, that is known as physiological hypoxia of the pregnancy or fetal life. तो just after birth क्या होगा कि this alveoli are filled with the air, or this air will suddenly increase oxygen saturation and these arterioles will dilate, and with the dilatation of these arterioles, when oxygen reach the blood here in capillaries or these arterial oxygenation जैसे ही ब्लड का होगा, there will be dilatation of this bronchial arteriole and resistance in the pulmonary vasculature जो है reduce होगा। while here we clamp the cord clamping होगी तो systemic circulation में resistance high हो जाएगा, जो कि पहले बहुत कम था जब प्लेसेंटल सर्कुलेशन चल रहा था, क्योंकि the systemic circulation opens up into the placental circulation, तो इसलिए सिस्टेमिक सर्कुलेशन में प्रेशर कम था और पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस ज़्यादा था, तो सिस्टम में जब ब्लड शंट हो रहा था पल्मोनरी दिस डक्टस आर्टरियोसस के थ्रू। बट जैसे ही बर्थ हुआ हमने कॉर्ड क्लैंप करी, कॉर्ड क्लैंपिंग से जो है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में रेजिस्टेंस बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया सिस्टेमिक सर्कुलेशन का, एंड हेयर जैसे ऑक्सीजन मिला, ऑक्सीजनेशन हुआ, ब्लड का हाइपोक्सिया रिमूव हुआ, तो पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो गया, आर्टरियोल्स डायलेट हो गए। तो उसमें क्या होता है, देयर में बी बाई डायरेक्शनल शंट इनिशियली इन डक्टस आर्टरियोसस एंड स्लोली देयर विल बी क्लोजर ऑफ द डक्टस आर्टरियोसस। तो डक्टस आर्टरियोसस क्लोज हो गया एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ adult circulation as well as adult respiration will be there. तो ये बेसिक फीचर्स हैं जिससे कि हम समझ सकते हैं कि रिससिटेशन में जो हमको हेल्पफुल होंगे। तो क्या क्या स्टिमुलाई होते हैं फर्स्ट ब्रीथ के लिए, कि बच्चा ब्रीथ क्यों करता है, किन स्टिमुलाई के अंडर करता है। तो बेसिक जो स्टिमुलाई होते हैं वो हाइपोक्सिया होता है, हाइपोक्सिया इंड्यूस्ड बाय द लेबर और फिजियोलॉजिकल हाइपोक्सिया ऑफ प्रेगनेंसी तो रहता ही है, बट लेबर में जो है वो हाइपोक्सी कंडीशंस और ज़्यादा हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। तो दैट हाइपोक्सिया रिजल्ट्स इन एनारोबिक मेटाबॉलिज्म एंड एसिडोसिस एंड कॉर्ड ओकल्जन, जो हमने बात करी, कॉर्ड क्लैंपिंग करेंगे तो सडन सिस्टमिक प्रेशर राइज करेगा, बैरोसेप्टर्स स्टिमुलेट होंगे, एंड थर्मल चेंजेस एज सच जो बच्चा
अभी तक जो है यूट्रस में बिल्कुल एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में रह रहा था। 37 डिग्री जो बॉडी टेम्परेचर था उस पे था, वो एकदम से बाहर आया, जहाँ का टेम्परेचर जो है उसके लिए अनुकूल नहीं है, बल्कि एडल्ट्स के रूम टेम्परेचर के हिसाब से जो हमको 22-26 डिग्री सेंटीग्रेड में जो हम फेवरेबल टेम्परेचर हम अपने हिसाब से मेंटेन करते हैं उसमें आ रहा है, तो एकदम से सडन कूलिंग जो है, थर्मल चेंज जो है उसको स्टिमुलेट करता है। तो ऐसा फिलोसफिकली भी बोलते हैं कि एक बच्चा जो बिल्कुल शांत अंधेरे एनवायरनमेंट में जो वार्म था, कंफर्टेबल था, शॉक एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब कर रहा था एमनियोटिक फ्लूइड, बिल्कुल जो है एक गर्म पानी की झील में उतैर रहा है, बिल्कुल जहाँ पे कोई नॉक्सियस कोई स्टिमुलाई है ही नहीं, ना कोई साउंड उसको ऐसा वायलेंट साउंड नॉइज नहीं है, कोई लाइट नहीं है, तो वहाँ पे वो जो है बिल्कुल आराम से रह रहा था। और वहाँ से जैसे ही वो बाहर आया तो लेबर रूम में लाइट है, एयर करंट है, कोल्ड जो इन्वायरमेंट है उसके लिए कोल्ड है, 37 डिग्री से आ रहा है, नॉइस है, these all will always result to cry or yelling of the न्यूबॉर्न। तो बच्चा जो है रोएगा ही इतने अच्छे इन्वायरमेंट से, इतने हार्श इन्वायरमेंट में उसके लिए जो है, तो फिलोसफिकली भी बात करें तो बच्चा जो है उसमें नेचुरली वो कराई करेगा ही करेगा। तो फिलोसफिकल बात हो गई। ऐसा फिजियोलॉजिकली बात करें तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्टिमुलाईज, जिनकी हमने बात करी। केमिकल स्टिमुलाई होती हैं, प्रेशर स्टिमुलाई होती हैं, और थर्मल स्टिमुलाई होती है। केमिकल स्टिमुलाई में जो अगर उसकी SpO2 देखें, ऑक्सीजन सेचुरेशन देखें, तो एज लो एज 22% जो है जस्ट आफ्टर बर्थ उसकी होती है। जैसे बच्चा बाहर आता है, बर्थ होती है तो, और 60 mm ऑफ Hg जो कि 40 और 45 रहता है कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर, वो 60 mm Hg रहता है। पीएच जो है एसिडिक हो जाती है उसकी 7.28 है। तो ये सारे चेंजेस जो हैं आर रिसीव्ड बाई और आर फेल्ट बाई कैरोटिड एज वेल एज आयोटिक साइनस, जो कि केमिकल चेंजेस के लिए जो है जो सेप्टर्स जहाँ पे हैं, तो यहाँ से इनकी स्टिमुलेशन होती है, जो कि इन रिटर्न जो है स्टिमुलेट्स रेस्पिरेटरी सेंटर। सेकेंडली देयर इज कॉर्ड क्लैंपिंग, जिसकी हमने बात करी कि कॉर्ड क्लैंप से सिस्टमिक प्रेशर राइज करेगा, और जैसे सिस्टमिक प्रेशर राइज करेगा तो it will stimulate aortic baroreceptors as well as sympathetic nervous system, which will in turn stimulate respiratory center. थर्ड स्टिमुलस जो हम बात करते हैं वो है थर्मल। और थर्मल बेसिकली जो है फेस पे जो ट्राइजेमिनल नाव की सप्लाई है, वहाँ पे जो ट्राइजेमिनल कोल्ड रिसेप्टर्स of the facial skin are stimulated, and they in turn stimulate respiratory center, and these all stimuli, chemical pressure or thermal stimuli, they all will result in birth cry or first breath. तो ये उसी की डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन है कि pH, कार्बन डाइऑक्साइड, इंक्रीज्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, they all will stimulate these carotid as well as aortic sinus receptors or message to the respiratory center, and there will be contraction of the diaphragm, and there will be negative pressure in the chest, sudden air entry into the chest, and starting of the breathing. तो इसी तरीके से जो है कोल्ड की बात करी उसने, एब्डोमेन पे बात करी, यूजली फेशियल स्किल से ट्राइजेमिनल नर्व्स के थ्रू जो है थर्मल जो स्टिमुलेशन होता है। तो ये बात हो गई हमारी कि बेबी फर्स्ट ब्रीथ कैसे करता है, हाउ baby cries, or what is the purpose of cry. Basic purpose of cry is to increase intrathoracic pressure so that the alveoli get opened up, and fluid is displaced from the alveoli. Basic purpose ये होता है। and first breath का तो पता ही है सबको कि first breath for maintenance of respiration। अब प्लेसेंटा से जो उसका रेस्पिरेशन कट ऑफ हो गया है, तो अब उसको एडल्ट रेस्पिरेशन पे जाना है, तो द बेबी हैव टू ब्रीथ। एंड कैसे ब्रीथ करता है, क्या स्टिमुलाइज होती हैं, उसकी बात हमने कर दी। व्हाट इफ lungs do not start their function, then it is known as asphyxia। तो बर्थ एस्फिक्सिया या यूजली जो एस्फिक्सिया में स्टार्ट इंट्रायूट्राइन लाइफ से ही जो एस्फिक्सिया स्टार्ट हो सकता है कि उसकी ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज हो गई, हेमरेज हो गया, प्लेसेंटा से ही जो है अगर उसके
ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो गई, तो यूजुअली जो है कई बार इस तरीके की कंडीशन होती है, तो उसको हम पेरीनेटल एस्फिक्सिया बोलेंगे कि पेरीनेटल पीरियड में जो एस्फिक्सिया सफ़र किया न्यूबॉर्न ने या fetus ने, that is known as perinatal asphyxia. So insult to the fetus or newborn due to lack of oxygen, basically hypoxia and ischemia, lack of perfusion जो है to various organ, that is known as perinatal asphyxia. And asphyxia occurs when organ of gas exchange fails, चाहे वो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटल डिसमेच्योरिटी हो गई है, प्लेसेंटल ब्लीडिंग हो गई है, या वो लंग्स है, तो उस कारण से जो एस्फिक्सिया रिजल्ट होगा, जो रेस्पिरेटरी फंक्शंस हैं वो जो है फंक्शन नहीं कर रहे हैं। तो एंड 90% ऑफ द एस्फिक्सियल इंसल्ट्स, जो बर्थ एस्फिक्सिया जो स्टार्ट होता है उसमें इट स्टार्ट्स इन एंटीपार्टल और इंट्रापार्टल पीरियड, इंट्रापार्टम या एंटीपार्टम पीरियड में ही जो है शुरू हो जाते हैं एस्फिक्सिया के चेंजेस या एस्फिक्सिया की जो ऑनसेट है। Then how grave this problem is, what is the gravity of problem, तो ये हम बार बार हर लेक्चर में बात करते हैं कि नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट को हम रिड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, एंड जो है अराउंड कि 60%, 70%, 69 और 70% of the infant mortality rate is due to neonatal mortality rate, and neonatal mortality rate में भी जो है एस्फिक्सिया रिलेटेड जो डेथ्स हैं वो सेकंड नंबर पे हैं, प्रीमेच्योरिटी के बाद उन्हीं का नंबर आता है। तो ग्लोबली जो है, हालांकि ऐसा नहीं है कि रिड्यूस नहीं किया है, द डाटा वाज 5 million previously, during 2004-5 it was 5 million children died in first month of their life in 2019. In 2019 it is 2.4, while in 2005 it was 5 million for neonatal mortality rate. ग्लोबल जो था पर ईयर जो जितनी डेथ हो रही थी 5 मिलियन हो रही थी 2005 में, तो वो रिड्यूस होके 2.4 पे तो आई हैं, बट स्टिल इट इज़ वेरी लार्ज, एंड अबाउट 1 मिलियन न्यूबॉर्न्स डाई विद इन फर्स्ट 24 आवर्स, तो उसमें भी जो है अराउंड 40% जो है डेथ्स कब हो जाती हैं, पहले 24 घंटे में, मतलब वो बर्थ एस्फिक्सिया या उससे रिलेटेड है। तो द कॉमन कॉजेज ऑफ neonatal mortality rate are preterm births, intrapartum related complication, mainly birth asphyxia, और इन्फेक्शन एंड बर्थ डिफेक्ट्स जो है सबसे कॉमन कॉजेज हैं न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट के। और इन डेथ्स में 25% अराउंड 0.5 मिलियन और 0.6 मिलियन डेथ्स जो है इंडिया में ही होती हैं पूरे ग्लोब से, तो 1/4 ऑफ दीज डेथ्स अकर इन इंडिया। तो इसका जो है पाई डायग्राम बताया है कि कैसे जो है, तो 24% ऑफ द neonatal deaths, around every fourth neonate died due to birth asphyxia related problems, while every third died due to preterm birth. तो ये दो मेजर कॉजेज जो हैं हमारे पास हैं, जिसमें कि रिससिटेटिव मेजर्स से हम लाइफ प्रिवेंट डेथ प्रिवेंट कर सकते हैं। देन व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ एस्फिक्सिया, होता क्या है एस्फिक्सिया में बेसिकली, तो बेसिकली एस्फिक्सिया में तीन चीज़ें बेसिक हैं। इट इज़ प्रोग्रेसिव हाइपोक्सिया, कि जो है धीरे धीरे ऑक्सीजन सेचुरेशन कम होती जाएगी और हाइपोक्सिया प्रोग्रेसिव होगा। देयर विल बी मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड देयर विल बी कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेशन। तो जब बेबी ब्रीथ नहीं करेगा तो हाइपोक्सिया में जाएगा, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन होगी, बट बेबी ब्रीथ नहीं कर रहा है तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, तो इस जो इक्वेशन एसिड बेस वाली इक्वेशन जो है उसमें हाइड्रोनियम आयन जो है ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, शिफ्ट होगा टुवर्ड्स राइट, और दैट विल रिजल्ट इन मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो दो जो है मेटाबॉलिक एसिडोसिस के कारण रहेंगे, वन इज एनारोबिक मेटाबॉलिज्म जनरेटिंग मोर एंड मोर लैक्टिक एसिड, एंड सेकंड इज रिटेंशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो तीन बेसिक चीज़ें होती हैं। हालांकि बर्थ एस्फिक्सिया में बोला जाता है कि कॉर्ड पीएच शुड बी लेस देन और अबाउट 7, and there should be features of multi-organ failure, but these definitions are for
सेकेंडरी टर्शियरी लेवल केयर। प्राइमरी लेवल पे बात करें तो अ बेबी हु इज नॉट ब्रीदिंग और ओनली गास्पिंग एट 1 minute having cyanosis is designated as birth asphyxia। सर्विलांस स्टडीज के लिए जो है बर्थ एस्फिक्सिया को हम इस तरीके से डिफाइन कर देते हैं। पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी, क्या चेंजेस होंगे बॉडी में, जैसे बेबी ब्रीथ नहीं करेगा तो क्या होगा। तो वाइटल ऑर्गन्स को बचाने, बॉडी क्या करती है कि वाइटल ऑर्गन्स को जो है बचाने की कोशिश करते हैं। तो इनिशियल चेंजेस विल बी कि जो नॉन वाइटल है, स्किन है, किडनीज है, एब्डोमिनल जितने विसरास हैं उनसे ब्लड शंट हो जाएगा। वाइटल ऑर्गन लाइक हार्ट एंड ब्रेन को जो है सप्लाई करने के लिए ब्लड शिफ्ट होगा या शंट होगा। वैसो कंस्ट्रक्शन हो जाएगी कुछ एरियाज में और कुछ में वैसो डायलिटेशन होगी। शंटिंग ऑफ द ब्लड टू वाइटल ऑर्गन्स होगा। एंड एसिडोसिस ड्यू टू एनरोबिक मेटाबॉलिज्म एंड रिटेंशन ऑफ ऑक्सीजन, हमने बात कार्बन डाइऑक्साइड, रिटेंशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये बात करी हमने। देन एसिडोसिस अब यहाँ क्या करेगा, एसिडोसिस और हाइपोक्सिया both increases the pulmonary resistance by constriction of the pulmonary arterioles। तो pulmonary arterioles की constriction हो जाएगी जिस कारण से जो है pulmonary vessels में भी ब्लड जाना कम हो जाएगा। इफ यू आर वेंटिलेटिंग बट एसिडोसिस सीवियर है और उसको हम करेक्ट नहीं कर रहे हैं तो वेंटिलेशन का कोई पर्पज नहीं रह जाएगा। तो वहाँ पे हमको जो इससे हमको क्लू लेना है कि वी हैव टू आल्सो करेक्ट acidosis, and this will generate stress to the body and there will be release of कैटेकोलामीन्स। फाइट और फ्लाइट वाला मैकेनिज्म शुरू हो जाएगा तो कैटेकोलामीन्स का रिलीज होगा and there will be release of some hormones like glucagon and they will generate more and more glucose from glycogen and ultimately after some time there may be hypoglycemia, hypothermia due to these all above changes। This will further complicate the situation and there will be end organ damage। तो ये जो है एस्फिक्सिएटेड बेबीज में क्या सीक्वेंसेस होते हैं, कैसे जो एस्फिक्सिया कैरी करता है, कैसे प्रोग्रेस करता है, उसकी उसको एक डायग्रामेटिक प्रोसेस में बताया है कि इनिशियली व्हेन द बेबी इज इन हाइपोक्सिया देयर विल बी रैपिड ब्रीदिंग। तो रैपिड ब्रीदिंग करेगा बट इफ ही इज नॉट in a environment which is rich in air or oxygen, then he will go into प्राइमरी एपनिया। प्राइमरी एपनिया में जाएगा, प्राइमरी एपनिया में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हार्ट रेट फॉल कर जाएगा, बीपी जो है थोड़ा स्टेबल रहेगा। थोड़ी देर में एपनिया, व्हाट इज एपनिया, एपनिया इज सिजेशन ऑफ कंप्लीट सिजेशन ऑफ द ब्रीदिंग फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड्स। तो प्राइमरी एपनिया में रहेगा वो कुछ देर, उसके बाद जो है उसकी एसिडोसिस बढ़ जाएगी, हाइपोक्सिया बढ़ जाएगा। दैट विल स्टिमुलेट रेस्पिरेटरी सेंटर एंड the baby will start irregular gasping, जो है स्टार्ट कर लेगा, वो डीप ब्रीदिंग नहीं होगी, रेगुलर गास्पिंग जैसी होगी। अगर इस टाइम भी बेबी ऐसे इन्वायरमेंट में है जहाँ उसको ऑक्सीजन या एयर नहीं मिल रही है, लाइक कि ये चीज़ें जो है उसकी इन यूट्रो हो रही है, इन यूट्रो जो है उसको उसकी ब्लड सप्लाई कट हो गई, कॉर्ड जो है प्रेस हो गई, जैसे न्यूक्ल कॉर्ड है, तो उस कारण से जो प्राइमरी एपनिया से होता हुआ अभी भी इन यूट्रो पड़ा है, वो जो है एफर्ट डाल रहा है बट ऑक्सीजन या एयर उसको नहीं मिल रही है, तो क्या होगा, उसको जो है वो सेकेंडरी एपनिया में चला जाएगा। थोड़ी देर जितनी भी बची खुची एनर्जी उसके पास है या ऑक्सीजन बची है उससे जो है वो काम चला के एफर्ट करेगा फिर से ब्रीथ करने का। बट अगर इस टाइम भी उसको जो ऑक्सीजन या इन्वायरमेंटल एयर नहीं मिली तो वो सेकेंडरी एपनिया में जाएगा विच इज टर्मिनल एपनिया। अब वो अपने से दोबारा एफर्ट नहीं करेगा। अब जो अगर हमने रिवाइव करने की कोशिश नहीं किया, रिससिटेट नहीं किया तो द बेबी विल श्योरली डाई। तो इस टाइम जो उसकी हार्ट रेट और फॉल करेगी। तो ऐसा जब भी हम एस्फिक्सिएटेड बेबी, एपनिक बेबी से मिलते हैं या एपनिक बेबी को रिसीव करते हैं, वी ऑलवेज शुड कंसिडर दैट इट इज इन सेकेंडरी एपनिया। ऐसा हम प्राइमरी एपनिया में क्या होगा कि हल्का सा भी हम स्टिमुलेशन करेंगे तो द बेबी विल स्टार्ट ब्रीदिंग, और ऐसा जैसे वो बाहर आ चुका है तो इन्वायरमेंटल लेयर से उसको ऑक्सीजन, सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलेगी एंड बेबी विल इम्प्रूव। तो सेकेंडरी और प्राइमरी एपनिया का जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, या जैसे हम जो कैसे
आइडिया लगाएंगे कि प्राइमरी है सेकेंडरी है, इट इज रेट्रोस्पेक्टिव कि आफ्टर स्टिमुलेशन इफ बेबी स्टार्ट्स ब्रीदिंग एंड टर्न्स पिंक, it is primary, it is not, it was primary apnea, and if there is no response, then it is secondary apnea, and we should treat all the newborns if born with asphyxia or apnea as secondary apnea and start resuscitation as early as possible. तो ये जो है बेसिक प्रोग्रेस ऑफ द एस्फिक्सिया कैसे होती है, सीक्वेंसेस कैसे चलते हैं, तो यही चीज़ जो है और इलेबोरेट करके है कि कैसे जो है एपनिया में चेंजेस होंगे, हाइपोक्सिया होगा, एसिडोसिस होगा, ब्लड रीडिस्ट्रीब्यूशन जिसकी हमने बात करी कि वाइटल ऑर्गन्स को बचाने की कोशिश करेंगे, तो जो जिन ऑर्गन्स को नहीं मिल रहा है वो उनमें ऑर्गन जल्दी जो है डैमेज होना शुरू हो जाएगा। बायोकेमिकल लेवल पे जो है कैटेकोलामीन्स रिलीज होंगी, ग्लूकागॉन रिलीज होगा विच विल increase glycosenolysis, and more anaerobic metabolism will generate more carbon dioxide as well as acids. तो acidosis होगी, initially there will be hyperglycemia due to release of catecholamines and glucagon, which will turn into hypoglycemia, and there will be various deficiency of various electrolytes like hypocalcemia or hyponatremia. तो रिस्क फैक्टर किन में जो है बर्थ एस्फिक्सिया हम सस्पेक्ट कर सकते हैं, रिस्क क्या है, किन बच्चों में होने के चांसेस हाई हैं। तो कुछ एंटीपार्टम हैं, कुछ इंट्रापार्टम है, कुछ डिलीवरी के दौरान रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, और कुछ हमको हिस्ट्री से क्लू मिल सकता है कि इनमें जो है ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी, उनको बोलते हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी, जिनमें बच्चों में बर्थ एस्फिक्सिया के चांसेस होते हैं। तो मदर की एज जो है एक्सट्रीम है, 18 से छोटी है या 35 प्लस है, प्रीवियस देयर इज बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, स्टिल बर्थ की हिस्ट्री है या वॉटसन्स की हिस्ट्री, इस तरह से प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी के जो है कंडीशंस हैं लाइक टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी है, हाइपरटेंशन है, डायबिटिक मदर है, या पोस्ट मैच्योरिटी है, तो प्लेसेंटा जो है मैच्योर हो जाता है, डिके करने लग जाता है, मल्टीपल जेस्टेशन है, मल्टीपल फिटसिस हैं, सिंगल प्लेसेंटा जो है उसको प्रोवाइड नहीं कर पाता उतना ऑक्सीजन, पुअर फिटल ग्रोथ है, एज सच अगर जो हेल्दी पर्सन है, ही सफर्स विद सम एडवर्सिटी, ही इज मोस्ट प्रोबेबली एबल टू fight with it, but if this particular adversity is suffered by some ill person, then he will or she will most probably succumb to that particular adversity. The same is true with the fetus. If fetus is having poor growth, एक नॉर्मल ग्रोथ वाला फिटस है और एक स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज है या माल फॉर्मेशन के साथ है, तो उनमें जो है चांसेस ऑफ एस्फिक्सिया जो कि डिलीवरी इंड्यूस्ड हाइपोक्सिया है, उससे एस्फिक्सिया में जाने के चांसेस हाई रहते हैं ऐसे बच्चों में। देन देयर इज RH आइसोमनाइजेशन एंड एनीमिया, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होगी तो नेचुरली हाइपोक्सिया के चांसेस और भी ज़्यादा होंगे, या ब्लीडिंग हो गई है प्रेगनेंसी में मेनली प्लेसेंटल साइड से, ओलिगो या पॉलीहाइड्रोएमनियोस है, मैटरनल डिजीज विच यूजुअली रिजल्ट्स इन पुअर फिटल ग्रोथ, तो कोई भी क्रोनिक मैटरनल सिस्टमिक इलनेसेस है, रीनल है, कार्डियक है, उनमें, या कुछ ड्रग्स हैं विच में इम्पेयर विद द रेस्पिरेटरी फंक्शन ऑफ द फीटस लाइक मैग्नीशियम सल्फेट है, या नारकोटिक्स हैं, मॉर्फिन का यूज हुआ है, या लिथियम है, तो वो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का काम कर सकती हैं। इसी तरह से इंट्रापार्टल पीरियड में भी कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिनमें कि बच्चे में जो है बर्थ एस्फिक्सिया हो सकता है कि इन कंडीशंस में बर्थ एस्फिक्सिया के चांसेस होते हैं। तो इफ देयर आर फीचर्स ऑफ फिटल डिस्ट्रेस, तो फीचर ऑफ फिटल डिस्ट्रेस क्या होते हैं? देयर आर बेसिकली 3 फीचर्स ऑफ फिटल डिस्ट्रेस, कि जब भी जो है आप एस्फिक्सिया में कोई आपका गला पकड़ लेगा तो आप क्या करेंगे? हाथ पांव मारेंगे, देयर विल बी इंक्रीज्ड फिटल मूवमेंट्स। तो फिटस भी जब एस्फिक्सिया में होता है तो इंक्रीज फिटल मूवमेंट्स होती हैं विच मे नॉट बी परसीव्ड, बट टू थिंग्स विच आर मोर इजीली परसीव्ड आर इंक्रीज्ड हार्ट रेट, कि वो जो है इनिशियली उस एस्फिक्सिया से लड़ने के लिए कैटेकोलामिन्स रिलीज होंगी, तो क्या होगा? हार्ट रेट इंक्रीज होगी।
तो जो हम सुन रहे हैं FHS fetal heart sound, that they are very much indicative of the condition of the fetal well-being or fetal distress during labor. तो अगर जो है 200 के आसपास जा रही है, 160 तक जो है, 120 to 160 इज नॉर्मल fetal हार्ट रेट. If it is 160 plus or 180 or 200 के आसपास जा रही है, to indicate early fetal distress. या second thing is increased intestinal motility causes passage of meconium. तो meconium stained liquor आ रहा है, that is also indicative of fetal distress. तो ये दो features देख के increased fetal heart rate और meconium stained liquor, they are features of fetal distress. तो उनमें हमको तैयार रहना चाहिए कि baby is suffering asphyxia inside, and we have to deal with the baby born with birth asphyxia. Then there is prematurity और post maturity. तो दोनों ही जो है अगर टर्म नहीं है तो प्रीटर्म और पोस्ट टर्म में जो चांसेस ऑफ एस्फिक्सिया आर हाई. देन एंटीपार्टम हेमरेज है, प्लेसेंटा प्रेबिया है, या ब्रेप्सियो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटल साइड से ब्लीडिंग हुई है, बच्चा पहले शॉक में या एनीमिया में है, तो उनमें भी चांसेस ज़्यादा रहेंगे. कॉर्ड प्रोलैप्स या टाइट न्यूकल कॉर्ड है, तो जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि कॉर्ड प्रेस होने से उसकी सर्कुलेशन, प्लेसेंटल सर्कुलेशन, प्लेसेंटा से जो ब्लड ऑक्सीजनेशन हो रहा था कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा. देन एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन है, जिसमें कि प्रोलॉन्ग्ड लेबर में बी द रिजल्ट ऑफ एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन. प्रेसिपिटस लेबर है, दैट में आल्सो रिजल्ट इन एस्फिक्सिएशन. देन प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन की लेबर पेन को जो है मोर देन 18 आवर्स से पहले ही जो है रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो गया, या कोरियो एमनाइटिस के फीचर्स मिल रहे हैं. मेकोनियम स्टेन लिकर हमने पहले भी बात करी, अगर फिटल डिस्ट्रेस है तो मेकोनियम स्टेन लिकर होगा. प्रोलॉन्ग्ड लेबर है, एक दिन से ज़्यादा हो गया लेबर पेन में एंड स्टिल बेबी इज नॉट लेबर्ड, और प्रोलॉन्ग्ड सेकंड स्टेज है कि 2 घंटे से ज़्यादा प्राइमी में 2 आवर्स हम सेकंड स्टेज लेते हैं, जबकि मल्टी में 30 मिनट्स में जो है सेकंड स्टेज कंप्लीट हो जाती है. तो उससे ज़्यादा अगर टाइम लग रहा है देन इट इंडिकेट कि बेबी कहीं ना कहीं जो है रुका पड़ा है, फंसा पड़ा है, जिस कारण से जो है एस्फिक्सिया के चांसेस उसके हाई होंगे. या फिर असिस्टेड डिलीवरी है, फोर्सेप्स लगाना पड़ रहा है, तो इंडिकेशन क्या है, या तो प्रोलॉन्ग लेबर है, फेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन है, कहीं अटका पड़ा है, तो उसमें जो है सच जो फिजियोलॉजिकल हाइपोक्सिया ऑफ लेबर होता है, दैट विल exaggerate and that will produce asphyxial consequences. या फिर इमरजेंसी LSCS करना पड़ रहा है, दैट इज आल्सो कि बच्चे के लिए अगर कर रहे हैं तो बच्चा एस्फिक्सिया में हो सकता है. या फिर कुछ ड्रग्स इंट्रापार्टम यूज किए हैं लेबर में, जो है कुछ ड्रग्स हमने यूज किए हैं, जैसे जनरल एनेस्थीसिया दिया या नार्कोटिक्स मॉर्फिन वगैरह यूज की हैं, तो उनमें भी एस्फिक्सिया के चांसेस हाई रहते हैं. तो these were all about एस्फिक्सिया. अब इसकी ट्रीटमेंट या जिसको बोलेंगे हम रिससिटेशन, उसकी बात नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे. एज सच एवरी लेबर, एवरी डिलीवरी इज शुड बी कंसिडर एज एमरजेंसी, क्योंकि कुछ रिस्क फैक्टर्स की बात हमने करी जो हमको हिस्ट्री से पता चल सकती हैं कि इन बच्चों में जो है एस्फिक्सिया के चांसेस हैं. बट स्टिल जो है इन रिस्क फैक्टर के अलावा भी एस्फिक्सिया हो सकता है कि प्रीवियसली कोई भी क्लू नहीं था हमारे पास कि एस्फिक्सिएटेड बेबी आएगा, एंड जैसे बेबी आया, बेबी डू नॉट क्राई जस्ट आफ्टर बर्थ, देन इट इज एन इमरजेंसी. Thus, any labor or any delivery should be considered as an emergency, and we should be prepared to resuscitate an asphyxiated baby. तो हर डिलीवरी में जो है हमको हमेशा तैयार रहना चाहिए कि we are going to handle a asphyxiated baby. We should be prepared mentally as well as we should be prepared on the basis of equipments कि सारे equipments हमारे पास resuscitation के लिए होने चाहिए. एंड जहाँ हाई रिस्क है, these high risk delivery should be conducted at secondary or tertiary level care, जहाँ पे जो है एटलीस्ट pediatrician or neonatologist is there to receive the baby which may be having asphyxia, and रिवाइवल के लिए जो आपके पास एक ट्रेंड पर्सन वहाँ पे होना चाहिए. तो दिस वाज ऑल अबाउट द बर्थ क्राई, फर्स्ट ब्रीथ एंड birth asphyxia. In next lecture we will discuss about the resuscitative care of the
न्यूबॉर्न की जो है बच्चा पैदा हुआ है तो हाउ टू असेस द न्यूबॉर्न एंड व्हाट टू डू, व्हाट टाइप ऑफ केयर द न्यूबॉर्न रिक्वायर, एंड रिससिटेटिव केयर में क्या क्या आएगा, वो सारी चीज़ें हम जो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तब तक थैंक यू। थैंक यू।